Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss a new topic and it is hybridization. So what is hybridization? So listen, this is the part of valence bond theory. It is a part of valence bond theory or VBT. And listen, it is very important and very interesting topic. So what is hybridization? So listen, when two different orbitals having different energy, when two different orbitals having different energy will combine together and they will form equal number of new orbitals having same energy, then this process is called as hybridization. So listen, you can see when two different orbital like s orbital and p orbital, then listen, we all know that different orbitals have different energy. It means when two different orbital having different energy will combine together, then they will form equal number of new orbitals having same energy. Then this process is called as hybridization. So listen, जब दो different energy के orbitals, for example s और p orbital, इनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, दे कंबाइन विद ईच अदर, ये एक दूसरे से जब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या आपस में मिलते हैं, देन लिसन, देन दे विल फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल. तो ये उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि सेम एनर्जी के होते हैं. इसका मतलब डिफरेंट एनर्जी के दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके सेम एनर्जी के उतने ही नए ऑर्बिटल जब बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. सो लिसन, यू कैन रीड इट, व्हेन टू और मोर ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी कंबाइन टुगेदर, then they form equal number of new orbitals having same energy, then this process is called as hybridization. So listen, now listen, what are the types of hybridization? So what are the types of hybridization? So hybridization is of following type. So listen, first one is sp hybridization, second one is sp2 hybridization, third one is sp3 hybridization, fourth one is sp3d hybridization, fifth one is sp3d2 hybridization. So listen, so first we will discuss what is sp hybridization. So when one s orbital and one p orbital having different energy combine together and they will form equal number of new orbitals having same energy, then this process is called as sp hybridization. It means जब एक s orbital और दूसरा p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो उतने ही जितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, इट मींस here 1 plus 1, two orbital combine with each other and there is formation of two new orbital.
इट मीन्स जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है तो उतने ही मीन्स दो नए ऑर्बिटल बनाता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है. देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन. तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन. एंड लिसन, द न्यू ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड, इट मीन्स जो नए ऑर्बिटल बनते हैं, दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. इन नए ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एंड लिसन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन. सो लिसन, it is sp hybridization. Now we will discuss sp2 hybridization. So listen, it is very simple. When one s orbital and two p orbitals having different energy will combine together and they will form equal number of new orbitals having same energy, then listen, then this type of hybridization is called as sp2 hybridization. तब ये hybridization क्या कहलाता है, sp2 hybridization. So listen, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल like one is px and other is py, when one s orbital and two p orbitals having different energy with each other, इन दोनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, आपस में एक दूसरे से अलग अलग है. मीन्स एस ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होगी इन दो p ऑर्बिटल से. सो लिसन, व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल combine together and they will form equal number of 1 2 3 1 2 3, then they will form equal number of new orbitals having same energy. Then this process is called as sp2 hybridization. And listen, these three new orbitals are called as sp2 hybrid orbital. So listen, you can write definition of each hybridization yourself. So listen, now we will discuss sp3 hybridization. So listen, when one s orbital and three p orbital like px, py and pz will combine together and they will form equal number of new orbitals having same energy, then this type of hybridization is called as sp3 hybridization. And these new orbitals having same energy are called as sp3 hybrid orbitals. It means पहला भी sp3 hybrid orbital बोला जाएगा, दूसरा भी sp3 hybrid orbital, तीसरा भी और चौथा भी. इट मीन चार यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी. सो लिसन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज sp3 hybridization. नाउ वी विल डिस्कस sp3d hybridization. So when one s orbital, three p orbital and one d orbital then will combine together, then they will form equal number of new orbitals having same energy. Then this process is called as sp3d hybridization. And these 5 new orbitals are called as sp3d
hybrid orbitals. Now last one is sp3d2 hybridization. So when one s orbital, 3p orbital and 2d orbitals, 2d orbitals combine together and they will form equal number of 6 new orbitals having same energy, then this process is called as sp3d2 hybridization. And listen, these new orbitals are called as sp3d2 hybrid orbitals. So listen, I hope you understood it very well what is hybridization and what are the types. Now we will discuss the example of sp hybridization. अब हम लोग डिस्कस करेंगे sp hybridization का एग्जाम्पल. So first example is hybridization in BeCl2 molecule. It means BeCl2 molecule में जो hybridization है वो किस टाइप का होगा, sp hybridization होगा. इसको हम करके पता करेंगे. So listen, first we write the ground state electronic configuration of 4Be. 4 is the atomic number of beryllium. So listen, it is also called as GSE, means ground state electronic configuration, GSEC. Ground state electronic configuration of 4Be, it is equal to 1s2 2s2 2p 0. According to Abao rule, what is the electronic configuration of 4Be? It is 1s2 2s2 2p 0. So we all know that second cell is the outermost cell, and this second cell contains two subshells, 2s and 2p. So listen, 2s subshell contain, we all know that one s orbital, and this s orbital contain how many electrons? 2 इलेक्ट्रॉन. ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. तो एक यहाँ पर 2s सबसेल में एक s ऑर्बिटल होगा जिसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो लिसन, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन. वी ऑल नो दैट सेकेंड सबसेल इज 2p सबसेल, और 2p सबसेल में होते हैं कितने ऑर्बिटल? 2p सबसेल कंटेन 3p ऑर्बिटल्स, बट देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो लिसन, वी ऑल नो दैट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इज सम लाइक दिस. हमें पता है BeCl2 का जनरल स्ट्रक्चर क्या है. ये बिकॉज Be के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cl के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स Cl को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की. तो ये क्या करेगा? Be के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा. सो लिसन, इट मीन्स Be अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से, जिससे क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट अब क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. और यहां भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. और बेरिलियम के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4. तो लिसन, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑब्टेन्ड. इट मीन्स जितने भी बॉन्ड बनाए जाते हैं, लिसन, तो उतने ही हमें यहां ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड करना पड़ता है. इट मीन्स यहां कितने बॉन्ड बना रहा है बेरिलियम? यहां 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है. इसका मतलब हमें 2 सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करना पड़ेगा? 2. सो लिसन,
दिस इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज सेकेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। लिसन, नाउ दिस थिंग we will understand here. It means हम इस चीज को यहां पर भी समझेंगे। Listen, now second state is called as excited state electronic configuration. This is called as excited state electronic configuration. So excited state electronic configuration of 4Be. इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम लोग सबसे पहले सेंट्रल आइटम का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, और लास्ट होती है हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिडाइज स्टेट। सो लिसन, नाउ वी विल राइट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी लोअर एनर्जी में रहते हैं, बट व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन गोज इन एक्साइटेड स्टेट देन दे जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट का वो क्या करता है, वो जंप कर जाता है किसमें, हायर एनर्जी लेवल में। हमें पता है 2p की एनर्जी ज्यादा है किससे, 2s। तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां चला जाएगा, 2p में। सो लिसन, नाउ कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम सम लाइक दिस। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। सो लिसन, यू कैन सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू अनपेयर्ड। आपको कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने होंगे। वी ऑल नो दैट वी हैव टू अनपेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेरिलियम। हमें पता है हमें 2 सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करना पड़ेगा। सो लिसन, यू कैन सी देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बेरिलियम। सो लिसन, नाउ लास्ट स्टेट इज कॉल्ड एज hybridized state. So we all know that this is 2s orbital and this is 2p orbital. ये 2s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, 2p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सो लिसन, हाइब्रिड, नाउ वी राइट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 बेरिलियम इक्वल टू, अब यहां पर होगा क्या, थर्ड स्टेज आएगी जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट। इट मीन्स देयर विल बी प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स यहां पर क्या होगी, ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस, जिसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से क्या करेगा, ये s ऑर्बिटल और ये एक p ऑर्बिटल ये आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद सेम एनर्जी के उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इट मीन्स देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, and they will form equal number of 2 new orbitals having same energy, and these 2 new orbitals are called as sp hybrid orbital। क्योंकि ये s और p के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इसलिए इन 2 ऑर्बिटल्स को, जिनकी एनर्जी सेम होती है, इन दोनों ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, sp hybrid orbitals। But listen, there will be 2 remaining p orbitals। यहां पर 2 p orbitals और भी बचेंगे, किसके पास, 4be के पास। It means
you can see beryllium has two new hybrid orbital. हमने देख सकते हैं यहां बेरिलियम के पास दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है. इन दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम बनाते हैं कुछ इस तरह से. सो लिसन, दिस इज फर्स्ट hybrid orbital of beryllium and it contain one electron. And listen, this is second hybrid orbital of beryllium and it also contain one electron. इसका मतलब जो बेरिलियम है उसके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें एक लोब बड़ा होता है और दूसरा लोब छोटा होता है. बट इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल बोथ लोब आर इन सेम साइज. दोनों ही लोब सेम साइज के होते हैं. दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पी ऑर्बिटल which is in dumbbell shape, जो कि डम्बल शेप में होता है. So listen, you can see this is the orbital diagram of beryllium. ये बेरिलियम का क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम है. यहाँ बेरिलियम के पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो हमने यहाँ पर भी देखा था बेरिलियम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर भी बेरिलियम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. और यही दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, यही क्या करेंगे, दो क्लोरीन के ऑर्बिटल्स से शेयरिंग करेंगे. दो क्लोरीन के एटम से अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे. एंड वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ क्लोरीन, इन केस ऑफ Cl having atomic number 17, its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. It means जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 3p सबशेल है and this 3p subshell contain 5 electron. So 1, 2, 3, 4 and 5. So listen, one electron is unpaired. यहां पर जो थर्ड p ऑर्बिटल है इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा और यही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और इससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, 3p6 हो जाएगा और 6 + 2 टोटल क्या हो जाएगा 8, क्योंकि यहां पर आउटर मोस्ट सेल क्या है, थर्ड. तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा शेयरिंग के बाद और यहां हो जाएगा 3p6. 6 + 2 कितना हो जाएगा 8. लिसन, नाउ यू कैन अंडरस्टूड इट फ्रॉम हियर. इट मीन्स यहां पर p ऑर्बिटल में क्लोरीन के क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. एंड लिसन, p ऑर्बिटल इज इन डम्बल शेप. जो p ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है. इट इज सम लाइक दिस. एंड लिसन, दिस p ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो जो p ऑर्बिटल में क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन था वो Be से क्या हो गया, शेयर हो गया. या क्लोरीन और बेरिलियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जिसमें क्लोरीन का p ऑर्बिटल जो कि डम्बल शेप में है ये इन्वॉल्व हुआ है, जबकि बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. नाउ वी विल टॉक फॉर सेकेंड क्लोरीन. दिस केस विल बी सेम एज फर्स्ट क्लोरीन आइटम. और ये जो केस होगा सेकेंड क्लोरीन के लिए ये भी क्या होगा, सेम होगा. सो लिसन, सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी, so the hybridization
in BeCl2, इसका मतलब जो BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। नाउ दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है? दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम। नाउ लिसन, व्हाट इज इट्स शेप और ज्योमेट्री? तो शेप या ज्योमेट्री क्या है? सो वी ऑल नो दैट इट इज इन लीनियर शेप। ये कैसी ज्योमेट्री है? लीनियर ज्योमेट्री है। इट्स शेप और ज्योमेट्री विल बी लीनियर। एंड लिसन, व्हाट विल बी इट्स structure? So structure will be, bonding structure will be Be at the center, and listen, there is one electron sharing and one electron sharing will form single bond. हमें पता है जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। So there will be formation of single bond. इट मीन्स ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर क्यों बेस्ड है? बिकॉज देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स। क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल्स की क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, और इसी ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा आपस में s और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं? p ऑर्बिटल से अगेन ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी B अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन आइटम से शेयर करके दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाएगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर, एंड बॉन्ड एंगल विल बी, व्हाट विल बी इट्स बॉन्ड एंगल? सो बॉन्ड एंगल वी ऑल नो दैट it will be 180 degree. So bond angle of ClBeCl it will be 180 degree. तो बॉन्ड एंगल लीनियर शेप में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। So listen, in the examination question will be asked into this form. What will be the hybridization, shape, geometry, structure and bond angle of BeCl2 molecule? Then you have to draw this orbital diagram, and listen, you have to do this process for hybridization. It means एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि BeCl2 मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा. देन यू हैव टू डू दिस प्रोसेस कंप्लीटली. तब आपको ये पूरी प्रोसेस कंप्लीटली करके दिखानी होगी.